Hello students, we all gathered here to discuss on a topic biodiversity. And Good evening, ma'am. name of the activity is चाय पर चर्चा. सबके पास Yes. मार्क्स है ना? तो हम आज चाय की चर्चा पे क्या करने जा रहे हैं? हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं. Okay. What do you mean by biodiversity? You know about it? Yes, ma'am. The spread of all living things. The existence of number of different kinds of animals and plants. आपको मैंने क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ाया था. उसमें क्या था? लार्ज जब स्केल पर हम क्रॉप्स को जब हमने ग्रो किया था, एग्रीकल्चर जब हमारा फॉर्म हुआ तो वहां पर क्या हो गया था? क्रॉप हो गया था. इसी तरह से ये हमारी बायोडाइवर्सिटी. अब ये क्या करती है? ये बूस्ट करती है इकोसिस्टम को, प्रोडक्टिविटी, जहां से स्पेसीज कोई मैटर नहीं है कि वो स्मॉल है या लार्ज है. Okay, so see my PPT sincerely. The term biodiversity was first coined by Walter G. Rosen in 1986. Note down 1986. The biosphere comprises of a complex collection of innumerable organisms known as the biodiversity, which constitute the vital life support for survival of human race. Biological diversity, abbreviated as biodiversity, represents the sum of total of various life forms such as unicellular, fungi, protozoa, bacteria, multicellular organisms such as plants, fishes, mammals at various biological levels, including genes, habitats and ecosystem. अभी जब आप अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो concept of biodiversity and its type. Listen everyone, biodiversity is the variety of life on earth. It is the variety of life on earth. Note down the main points. Okay, we will discuss after the PPT. For any kind of animal or plant, each individual is not exactly the same as any other, nor are species or ecosystems. Is it clear? Biodiversity is generally described at three levels. First one is genetic diversity, number two is species diversity, and number three is ecosystem diversity. Clear everyone? Yes, ma'am. Types of Yes, ma'am. biodiversity. Yes. Genetic biodiversity, species biodiversity, ecosystem biodiversity. Clear? Yes, ma'am. Pictures. Yes, ma'am. See these pictures. Admit control. Yes, ma'am. Wait. Ecosystem biodiversity. See all pictures. Ecosystem or habitat biodiversity. Ecosystem is the structural and the functional unit of biosphere. Ecosystem diversity is defined as the aggregation of various habitats, community types, and a biotic environment in a given area. India has one of the biggest ecosystem diversity. Listen everyone. India has the biggest one of the biggest ecosystem diversity. Range from the deserts, कहाँ पे रेंज है इसकी? Deserts में, plains में, hills में, mangroves में, rain forest में और cold Himalayas में. Is it clear? आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर, उसमें भी आपने ये सब देखा होगा जहाँ पे पोलर बियर वगैरह का कंसेप्ट आया था. Distribution of biodiversity. अब इसका क्या distribution है? Biodiversity is not evenly distributed, rather it varies greatly across the globe as well as within regions. Okay, clear everyone? Yes. Terrestrial biodiversity is thought to be up to 25 greater than ocean biodiversity. कितना % greater है? 25 times. आपको ये नोट करना है, 25 times greater है वो. An study of the spatial distribution of organisms, species, and ecosystem is the science of biography. See this picture?
So threats of biodiversity, habitat destruction. Important to protect habitat in order to protect biodiversity within. Huge pressure from the world's rapidly increasing population. Clear? Yes, ma'am. Global Yes, climate ma'am. change. Yes, Change, ma'am. change in a biotic element of ecosystem leading to biotic change. Habitat fragmentation from human activities, reduce ability of habitat to support species. इन कंसेप्ट्स को सुन लेना, क्या क्या बताया मैंने, क्या क्या डिस्ट्रक्शन करता है, क्या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से हो रहा है, क्या हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन हो रही है. पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ना. इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग with nitrate fertilizer as well as more immediately harmful chemicals. आपको मैंने बताया था ना फर्टिलाइजर और मैन्योर का, उन दोनों के डिफरेंस में क्या था. फर्टिलाइजर क्या करता है, फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं एक हाई उसके लिए सॉइल के लिए कभी कभी वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है, फ्रेंडली नहीं होता है इतना. क्लियर एवरीवन? पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्लियर. ओवर एक्सप्लोटेशन क्या होगा, इंक्लूड्स करेगा इलीगल वाइल्ड लाइफ को, ट्रेड एज वेल एज ओवर फिशिंग, पोचिंग ऑफ ट्रॉपिकल हार्डवुड्स एटसेट्रा. एलियन स्पेसीज, ये क्या करता है, ह्यूमन रीजन को जहां पे कोई भी नेचुरल प्रीडेटर नहीं है. डिजीज, reduction in habitats causing high pollution densities, etc. Is it clear, everyone? Habitat loss. Yes, ma'am. See this picture. Ma'am. क्या हो रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, प्लांट्स को कट किया जा रहा है. Yes, मैं सबको, क्या ये हमारे लिए, ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं? No, ma'am. नो. क्या करेगा ये सॉइल इरोजन भी कर देता है हमारे लिए. जब हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तो ये हमारे लिए बेस्ट थिंग नहीं है. अब क्या क्या लॉस होता है इससे. हैबिटेट लॉस कैन बी डिस्क्राइब्ड व्हेन एन एनिमल लॉसेस देयर होम. उनका घर चला जाएगा, ठीक है. एक एनिमल किंगडम जहां पे वो सब सर्वाइव कर रहे होते हैं, जहां वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनकी कम्युनिटी जो होती है ना, वो ज्यादा देर तक वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकती. आपको क्या लगता है, अगर हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करते हैं और हम प्लांट्स को वहां से रिमूव कर देते हैं, ट्रीज को, तो क्या वहां पे एनिमल्स का शेल्टर बचता है, उनको रहने के लिए स्पेस मिलता है? इसीलिए डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है. ओके, रीजंस ऑफ हैबिटेट लॉस बाय ह्यूमंस. अब ये तो हुआ हमारा प्लांट्स के थ्रू. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो उनका क्या होगा. अगर ह्यूमंस के थ्रू उनका क्या लॉस हो रहा है. एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पर्सनल यूज, इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट. बेटा मैंने आपको बताया था, मानसीज वेटिंग, मैंने आपको बताया था पॉल्यूशन वाले चैप्टर में. आपने पढ़ा था आपने पॉल्यूशन में क्या क्या बताया था मैंने उसमें, कि किस किस चीज से पॉल्यूशन होता है. आपने देखा ना, केमिकल वेस्ट, जब हमारा कोई भी इंडस्ट्री केमिकल को रिलीज कर देता है वाटर में, एयर, रिवर में, तो क्या होता है, ये सब हमारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं सब के सब खत्म हो जाते हैं. तो ये भी तो इनका एक किंगडम है ना, जहां पर ये सर्वाइव करते हैं. करंटली रेग्ड एज प्राइमरी कॉजेज ऑफ स्पेसीज एक्सटिंक्शन बर्ड लाइफ, और ये एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होगा. आप मेन पॉइंट्स नोट कर सकते हो, और इस चर्चा को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो आप ये पॉइंट्स रख सकते हो. ओके, सो नोट डाउन. Example. Listen carefully. This is the best example of this. The impact upon China's panda, one found across the nation. Now it's only found in fragmented and isolated regions in the southwest of the country as a result of widespread deforestation in the 20th century. कौन डिफाइन करेगा इसको? सृष्टि करो. अश्विन आप नीचे वाला बताओगे. सृष्टि इस एग्जांपल को क्लियर करो. May I audible to you? मैम. यस मैम. Hmm. मैम इस एग्जाम्पल में ये है कि चाइना के पांडास जो थे उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है. अब वो सिर्फ साउथ वेस्ट के जो कोल्ड बहुत ज्यादा रीजन्स हैं, आइसोलेटेड रीजन्स में जाकर वो बचे हैं. सिर्फ ये लॉस ही तो है बेटा, बस वहीं पे बचे. और ये हमारे लिए क्या है, ये लॉस ही तो है. अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए, अगर वो खत्म हो गए, तो एक स्पेसीज हमारी चली जाएगी ना आज से. Ashwin, explain me the down part. Sonakshi, be ready for that.
मैम हैबिटेट मैम आप देख सकते हैं मैम, जैसे मैम मैम नेचुरल अलग अलग कॉजेज टू आप बताओगे, और सोनाक्षी आप इनको मर्ज करके मुझे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दोगे। हाँ मैम जैसे मैम आप देख सकते हैं मैम अलग अलग मैम हैबिटेट अब डिस्ट्रॉयज हो रहे हैं मैम 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 बहुत सारे मैम, जैसे नेचुरल कॉजेज की वजह से मैम, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस, फायर एंड स्टफ मैम, दैट्स व्हाई फॉरेस्ट फायर अभी हमने पढ़ा था ना, फॉरेस्ट फायर से भी तो बहुत कुछ लॉस होता है ना। और फॉरेस्ट फायर किसके थ्रू होता है? ग्लोबल वार्मिंग ना। अगर हमारा ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, होल हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। यस तो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है मैम, इससे अब मुझे मर्ज करके सोनाक्षी मर्ज करके मुझे बताओ। वर्तिका नेक्स्ट के लिए तैयार रहना। मुझे इस पूरी स्क्रीन को शॉर्टकट में जल्दी से एक्सप्लेन कर दो बेटा। यस, बी रेडी। वर्तिका हाँ बोलो। हाँ सोनाक्षी बोलो सोनाक्षी। मैम जो चाइना के पांडास होते हैं वो अभी सृष्टि ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया था बेटा, बोलो वर्तिका। मैम इसमें ये है कि जैसे कि पहले के तो चाइना के पांडास होते थे, वो पहले पूरे कंट्री में मिलते थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं। और हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, कहीं पे वॉल्केनो से हो रहा है, कभी कहीं पे फॉरेस्ट फायर से हो रहा है, तो कभी कभार पॉल्यूशन से हो रहा है। और हम हर दिन वेरी नाइस। देखो सारा दिख रहा है यहाँ पर। आशवी, मुझे सभी बच्चों के नाम याद नहीं है, इसलिए जिसको भी बोलना है वो बीच में आके अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है। ये पिक्चर्स आपको दिख रही है सबको? यस मैम। फॉरेस्ट फायर भी हो रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ना आपको? ये पिक्चर्स से समझ आ रहा है कुछ आपको? क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर से? मैम इसमें दिखा रही है कि फॉरेस्ट में फायर लग रही है। फॉरेस्ट फायर हो रहा है, और फॉरेस्ट फायर किस लिए हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर। सॉल्यूशंस, अब इनके सॉल्यूशंस क्या क्या है? आशवी तुम आ जाओ, प्रथम आप बताओ बेटा, एक एक स्टेप एक एक सभी बता दो। हाँ यस प्रथम। रिमेनिंग जो कहते हैं सेक्शन को मैम प्रोटेक्ट करना। यस मीन्स जो अभी हमारा नेट जो बचा हुआ है पोर्शन है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, हम बचा सकते हैं ना, उनको रिड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज, हम इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा नहीं एक्सप्लोर कर सकते जिससे कि लॉस हो, तो हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सब चीजों से। नेक्स्ट तनिष तुम बताओ बेटा। यस मैम। By increasing awareness about them. यस वेरी गुड। यस And by preventing cutting of trees. मैम हम ट्रीज प्लांट करें। मीन सबसे बड़ी बात है हमें पॉल्यूशन फ्री रखना है अपने अर्थ को। अगर एयर वाटर किसी का भी अगर पॉल्यूशन होता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा। क्लियर एवरीवन? इजी लग रहा है? प्लेन से लग रहा होगा ना? पता नहीं क्या कराएंगी मैम आज। कोचिंग, ध्यान से देख लो इसको, और कौन मुझे आकर इसके बारे में एक्सप्लेन करेगा? यस मैम। किलिंग एनिमल्स फॉर मनी। कोचिंग क्या है ये? कौन बताएगा? प्रतीक मुझे नजर नहीं आ रहे हो, प्रतीक आ जाओ, तुम बताओ जल्दी से। हाँ हाँ बोलो बोलो, वन वन करके। यस यस ऑफ कोर्स, तनिष बोलो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। शुरू हो जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास बच्चे, शुरू हो जाओ। कोचिंग इज द हंटिंग एंड हार्वेस्टिंग। मैम एनिमल्स को मारते हैं मैम पैसों के लिए। ओनली वन तनिष। यस मैम मैं बोलने नहीं दे रहा। तनिष बोलो। मैम पोचिंग मैम hunting, poaching is the hunting and harvesting, taking of wild animals, plants, wild animals, fishing or trapping. Yes, Vasudev, history of poaching. जल्दी जल्दी से शेयर करो बेटा, क्या हिस्ट्री है पोचिंग की? पोचिंग में जिसमें हम हंटिंग करते हैं एनिमल्स को। आपने देखा था ना वो, आपने अर्ली एज वाला देखा था जब स्टोन से स्टोन को हमने रब करते थे हमारे जो पहले आपने, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, देखा था ना जब हम फायर किए, तो ये स्टोन एज, ये उस एज से मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, बहुत मतलब बहुत पुराने उससे चला आ रहा है। तब भी वो मार शिकार करते थे ना? यस मैम। अभी तक एंट्री कर रहे हैं। ओके तो नेक्स्ट वन, जल्दी से नेक्स्ट बताओ। हमें या हाँ ऑफ कोर्स। ये एजेस मैम, ये एजेस से फॉलो हो रहा है बहुत। यस मैम ये एजेस से फॉलो हो रहा है।
Yes, ma'am. Yes, Poaching is the hunting and killing of animals. Ma'am, like yes, protected areas, वहाँ पे भी ma'am government should make strict rules to yes. prohibit poaching and killing of animals. अब आपको पता है बैन भी हो गया है, गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया ये सब चीजें, ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? पोचिंग कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नेक्स्ट, Yes, ma'am. No, ma'am. क्यों करते हैं पोचिंग? स्पीडली बेटा, टाइम पीरियड बहुत कम है और मेरी पीपीटी ऑलरेडी बहुत लार्ज है। लार्ज प्रॉफिट्स लार्ज प्रॉफिट के लिए आपको पता है उनकी स्किन, उनकी जो स्किन होती है उससे क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं उनको, क्या करते हैं उससे मटेरियल बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनसे प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे, पर्स बनता है, बेल्ट बनता है। तो आपको आज क्या करना है, एक प्लेज लेनी है सबको, अपने अपने मग उठा लो और एक प्लेज लेना अभी थोड़ी देर में कि आपको कोई भी इनका बना हुआ प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, ठीक है? आपको अपने पेरेंट्स को भी बोलना है, अपने कुलीग्स को भी बोलना है कि आपको एनिमल्स स्किन का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, ठीक है? जल्दी से बताओ। एग्जिट बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट कॉज्ड बाय लैक ऑफ एजुकेशन। वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो इसका लॉस नहीं जान रहे हैं, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं। तो वो इलिटरेट है, इलिटरेट भी नहीं बोलेंगे, वो अपनी एजुकेशन का यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है? और जो काफी कल्चर्स ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं सर्टेन एनिमल पार्ट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे कल्चर भी है जो कहते हैं नहीं नहीं इनकी दवाइयां हम खाएंगे। आपने सुना है फिश की टैबलेट्स आती हैं, अरे हमें मछली की गोली खानी है, पावर आ जाती है, प्रोटीन आ जाता है, ये सब गॉसिप है, ये सब उन्हें नहीं करना है। क्लियर एवरीवन? आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। 3 of the most of 10 poached species in the park are galax, black coast. Note down fast. नोट कर लो इन तीनों को, हम बाद में क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं इसको, ठीक है? ये लिमिटेड एनिमल्स में ही नहीं है, ये प्लांट्स के साथ भी है। मींस ऐसा नहीं है प्लांट्स भी हमारे गायब होते जा रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो गैलेक्स, ब्लैक कोशस एंड जो भी लिख रहा है ना इसको वो चैटिंग में डाल दे जिससे दूसरा बच्चा लिख ले। हाउ डज पोचिंग अफेक्ट द एनवायरमेंट? अश्विन जल्दी जल्दी से बताओ। यस मैम। प्रथम तुम नेक्स्ट बताना। a lot of मैम एनिमल्स मैम, अब मैम जैसे मैम आपको पता है मैम एनिमल्स मैंने और बोला कि प्लांट्स अफेक्ट द एनवायरमेंट। हाँ हाँ यस मैम, Yes, मैम yes. एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे मैम डिपेंड्स करते हैं मैम। Yes, अगर एनिमल्स क्यों? चले क्योंकि जाएंगे तो मैम लाइफ कहीं ना साइकिल कहीं आपने देखा, लाइफ साइकिल अगर स्नेक रैट को नहीं खाएगा या फ्रॉग को नहीं खाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? स्नेक तो मर जाएगा क्योंकि उसका तो खाना खत्म हो गया ना, और हमारी Yes, ma'am. पूरे अर्थ में क्या हो जाएगा? एक स्पेसीज ज्यादा हो जाएगी। तो Yes, उसको ma'am. बैलेंस तो करने के लिए टूट जाएगी। यस, तो हमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये आप पढ़ेंगे आगे, ये सब बैलेंस करने के लिए हमें लाइफ साइकिल को बनाना पड़ता है, ठीक है? Poaching results in animals being hunted too soon for them to have time to reproduce and reproduce. Clear everyone? Yes, ma'am. Recent issue, आप देखो रिसेंट कौन कौन से, अब कोई भी बच्चे आ जाओ, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं सबके, जो जिसको भी बोलना है वो एक एक पॉइंट जल्दी जल्दी से बोलते रहो। यस, फर्स्ट प्रथम बायोडाइवर्सिटी पे बोलना है। recent issue on biodiversity, see on your screen बच्चे, some 75% of genetic diversity of plants been lost in past century। मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ, आपकी लास्ट जो पास्ट सेंचुरी गई है उससे हमने कितना लॉस किया है? 75% genetic diversity of crop। Okay, clear everyone? Some scientists estimate that as many as 3 species per hour, 3 स्पेसीज पर और एक्सटिंक्ट होती हैं और 20,000 एक्सटिंक्शंस अकर ईच ईयर। 3 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 3 स्पेसीज हमारी एक्सटिंक्ट होती हैं और 20,000 हमारी कितने में जाती है? पूरे साल में चली जाती है। Roughly 1/3 of the world's coral reef system have been destroyed or highly degraded. About 24% of mammals and 12% of bird species are currently considered to be globally threatened. Clear everyone? More than 50% of the world's wetlands have been drained. The pollutions of inland water and wetland species have declined by 50% between 1970 to 1999. Clear everyone? Yes, ma'am. Okay, conservation, हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं?
रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप लोग ध्यान से सुन लो क्योंकि चर्चा पे तो आप लोगों को ही बोलना है, मैं चुप रहूंगी तब। रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पार्टिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, population control, reviewing the agriculture practice, controlling urbanization, conservation through biotechnology. Categories, अब देखो इसको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज आई विल सेंड दिस पीपीटी। कैटेगरीज कौन कौन सी है? मैमल्स हमारे पास इंडियन स्पेसीज कितने हैं? 386, परसेंटेज 59, और स्पेसीज थ्रेटेंड इन इंडिया 41%, बर्ड्स 1219, लॉस कुछ नहीं है 7%, reptiles 495, 73 and 46%. Clear? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लो, फ्रेश वाटर फिश का ले लो। 10 बायोग्राफी रीजन्स ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के 10 कौन कौन से नोट डाउन कर लो, अभी इसमें क्वेश्चंस पूछेंगे, कोई भी नोट डाउन कर लो, वही इस क्वेश्चन को पूछना और जो आंसर देगा मेरे लिए वो बेस्ट होगा। ट्रांस हिमालय, हिमालयन, India desert, semi-arid zone, Western Ghats, Deccan Peninsula, the Gangetic Plain, Northeast India, the islands and the coast. Clear everyone? Yes, ma'am. Screenshot ले लो बेटा, screenshot ले लो अगर नहीं लिख पा रहे हो तो। Okay? Screenshot जो भी करना है कर लो, जिसने लिख लिया वो आगे नोट डाउन कर दो। ट्रांस हिमालय, हिमालयन, okay. India figured with 2 hot spots, Western Ghats और Eastern Himalayas. ठीक है, 25 of the world's biological richest and most threatened ecosystem. 2 hotspot कौन कौन से हैं हमारे? Western Ghats, Sri-Lanka, the Indo-Burma region covering the Eastern Himalayas, and they are included amongst top 8 most important hotspots. There are the areas with higher concentration of endemic species and which usually experience rapid rate of habitat modification and loss. Western Ghats, बताओ मुझे कौन बताएगा? सृष्टि, अश्विन, जल्दी से बताओ या मैं आगे आगे कर दूं, आप रीड कर लो सारे फटाफट से। Western Ghat faced with tremendous population pressure, the forest of West Ghat. Western Ghat, Sri Lanka, region is home to rich endemic agriculture and timber. The region. Yes, elephants, tiger and legend, ये सब उसमें आ रहा है। ईस्टर्न हिमालयाज आपने पढ़ा होगा, ये भी हमारी रेंज में आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर फ्लोरा और फोना अभी आप पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी। फ्लोरा होता है एक जगह जहां पर सारे फ्लावर्स की वो की जाती है, ठीक है। फोना हमारा, फ्लोरा और फोना अभी आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। 2012 के अंदर रिकॉर्ड किया गया था थिक फॉरेस्ट एरिया, जिसका इतना एरिया था, जोग्राफिकल एरिया था वो। मेन पब्लिक फॉरेस्ट्री थी, इंस्टीट्यूशंस थे, महाराष्ट्र स्टेट, द महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र। आप इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, FDCM, SFD क्या होता है, MFD क्या होता है। ओके, आप एक अच्छे से रिपोर्ट बना के मुझे सेंड करना बाद में। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी CBD, इसको हम क्या बोलते हैं? एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है और इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। क्या क्या करता है ये? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स एंड फेयर एंड इक्विट शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंक्लूजन, आज अब हमारा पूरा इस चैप्टर का क्या क्या कंक्लूजन आया है, जल्दी से अश्विन फटाफट से रीड करो। सोनाक्षी तुम नेक्स्ट करना और थर्ड सृष्टि करना। रमशा तुम सारा लास्ट में। concept that has no general definition. Usually it is used to context that stresses and the uses of intention on our living environment and sustainable use of natural resources. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes. Next. Next. Can I? Different types Yes. as habitat, species, and general कौन कौन से थे? कौन कौन से थे रमशा? जल्दी से बोलो, सारे बोलो जिसको भी पता है। species, engineers, Habitat, species, and Habitat, species and genetic diversity. Integrated approach used to coastal zone management is an adequate method in dealing with the matter of biodiversity. Yes, Shrishti. हाँ, Vidisha, start. it Can is I? populated by Yes, different सारे बोलो, चर्चा में सब बोलते हैं।
Types of biodiversity. Ma'am, can I? हाँ हाँ, of course, Why should we anyone. conserve आदित्य तुम भी करो, biodiversity? आपस में डिस्कस करो बायोडाइवर्सिटी को। आदित्य बोलो। Why should we conserve biodiversity? करना चाहिए, क्या एग्री करते हो आप सृष्टि से? Diversity. Yes, क्या ma'am. कौन Yes, कौन ma'am. करता है, Why? कौन कौन नहीं करता है? आपको ये सेशन कैसा लगा, पहले मुझे ये बताओ। हमारे मैम ये बहुत सेशन अच्छा। आपको कैसा लगा? आपको कुछ नॉलेज मिली, सेटिस्फेक्शन आया? अब हम ऐसे ही वीकली करेंगे और कोई भी टॉपिक आप चूज करोगे और हम उस टॉपिक को लेंगे, यस मैम। ठीक है? Okay, ये ma'am. मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब हम जो क्विज हम अटेंड करेंगे, वो जो आपकी जो अभी मैंने जो बलमपुरम की जो क्विज आपके साथ डिस्कस की है, उस क्विज को करेंगे, आप पार्टिसिपेट और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। अब ये बताओ, आज का सेशन Okay, ma'am. आपका बायोडाइवर्सिटी का कहीं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज आएगा, Yes, ma'am. यूज करेंगे उसको। तो अब आप एक प्लेज ले लो, सारे बच्चे यहाँ पर हाथ रखो, एक प्लेज लो जल्दी से, और क्या बोलोगे? सृष्टि बोलो जल्दी से, तुम्हारे पीछे पीछे सारे बोलेंगे। आपको क्या करना मैम है? मैं बोलूं? हाँ बोलो। हम हमें लोगों के बीच बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और तो हम सब क्या बोलेंगे कि मैम, हम मैंने- कोई भी प्रोडक्ट, हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा यूज, हाँ आशवी बोलो, नहीं करेंगे। प्लांट्स और ट्रीज कट नहीं करना है बल्कि लगाना है। नहीं करना है कट, और हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जो उनकी स्किन से यूज किया गया हो या उनके कोई भी ऑर्गन से, हम यूज जैसे नहीं करेंगे। मैम वो यूज नहीं एनिमल टीथ करेंगे। होते हैं ना, use उससे नहीं भी बनता, करना है। तो हमें यूज नहीं करना है। और फिर और हमें क्या करना है? हमें इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना है लोगों तक। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमें जितने भी हमारे एरिया में या हमारे कोलीग्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, हमें सबको उन्हें समझाना है कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर ये सब चीजें खत्म हो गई तो हमारी साइकिल खत्म हो जाएगी। अब स्पेस में सन और अर्थ की डिस्टेंस तो मुझे आदित्य ने शेयर की, वेरी वेल डन। बट बेटा अगर ये भी नहीं होगा तो हम, हाँ वो एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होती है, बट अगर हम बायोडाइवर्सिटी को भी कंसीडर नहीं करेंगे ना, तो भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे बच्चे। फिर कहाँ सन, कहाँ अर्थ, कुछ नहीं है, क्योंकि अर्थ पे रहने के लिए भी हमारे पास बहुत सारा एसेंशियल है। अगर हम उस एसेंशियल की केयर नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग, क्योंकि आप हमारी जनरेशन हो, आप हमारी ऐसी जनरेशन हो जो हमारे पूरी इंडिया को चेंज कर सकती है, वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, इंडिया नहीं वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स, सब कुछ चेंज हो सकता है अगर आप लोग उस चीज को फॉलो करो। ओके मैम। तो आज हमने प्लेज लिए सबने। कैसी रही आपकी चाय पे चर्चा? अच्छी रही, मजा आया? अब किसी को अगर कोई छोटी सी भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, या फिर आप आपस में इसको लेके कोई भी डिस्कस कर सकते हैं। यू हैव 5 मिनट्स। मैम, यस मैंने आज न्यूज़पेपर में से अपने आज के टॉपिक के 2 फैक्ट्स देखे। मैम बताओ। हाँ हाँ ऑफ कोर्स बेटा, 5 मिनट्स है, जल्दी करो। Ma'am, that around 15,000 new species are found every year, and around 137 species of plants, animals, insects, all that are being lost every day. यस कितना लॉस हो रहा है हमारा, यहाँ तो क्लैपिंग भी नहीं आएगी। कितना लॉस हो रहा है देखो। और बताओ, क्लैप किसके लिए? आशवी के लिए, क्योंकि उसने इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लिया और उसने उसके लिए सर्च भी की इंफॉर्मेशन। और कुछ बताओ बताओ जल्दी जल्दी। मैम 99.9% एनिमल स्पीशी हैव बीन एक्सटिंक्टेड बिकॉज ऑफ, मैंने पूरा लिखा था। बिकॉज ऑफ अस। बिकॉज ऑफ अस। हाँ बोलो विदिशा। एक्शंस की वजह से। एक्शंस की वजह से, जो हम ये सब फॉलो नहीं करते ना चीजों को। हाँ बोलो विदिशा। मैम मैंने पूरा बायोडाइवर्सिटी और उसका एक एग्जांपल लिखा। बताओ, शेयर करो बेटा। मैम, the earth is populated by incredible numbers of living creatures. यस It's like an example similar to our life. Our house is like a view, and we are living creatures like insects, humans,
They are type of species. और And नेक्स्ट वन, that is वेरी गुड। बच्चों ने कोशिश की है, इसमें आप लोगों ने सर्च किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बताओ नितिका, तुम कैसे शांत हो बेटा, आप बताओ थोड़ा सा। मैम हाँ, यस। biodiversity found on the earth today is the result of 3.5 billion years of evolution. Yes, good information. मैम चिपकू आंदोलन चिपकू मूवमेंट, चिपकू आंदोलन, हाँ चिपकू आंदोलन पता है किसने किया था, किसका था, बताओ जरा तनिष। मैम एसएल पढ़ना। हाँ बताओ वेदांशी, कौन बता रहा था इसको? हाँ जल्दी से, 2 मिनट्स लेफ्ट। अब बोलो, चर्चा पे सब बोल सकते हैं बच्चे, जल्दी से बताओ, 2 मिनट्स लेफ्ट है। के ऊपर में मूवी बन चुकी है मैम। बायोस्फीयर रिजर्व इज वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज इज लिमिटेड। यस मैम बायोडायवर्सिटी ऊपर में मूवी बन चुकी है। अब तो हमारी भी मूवी बन गई ना आज, हमने प्लेज लिया, हमने सबको समझा, अब तो हमारी भी मूवी बन गई, मैं इसे अपलोड कराऊंगी। मूवी बनाना बेटा इजी है, बट उसको मेंटेन करना अपनी चीजों को बहुत डिफिकल्ट है। आज हमने इस टाइम को वेस्ट नहीं किया है, हमने इस नॉलेज को ग्रास्प किया है और अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है बेटा। मैंने भी अपना बहुत प्रीसियस टाइम आपके साथ शेयर किया, आप लोग भी पूरा प्रॉपरली यूनिफॉर्म में आके बैठे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से सब कुछ लेकर आए हैं, लेकिन क्या हमें इसे वेस्ट करना है टाइम को? नहीं, हमें अब इस नॉलेज को क्या करना है, स्प्रेड करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए ये क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज तो ये टाइम वेस्टेज है, ये कप भी वेस्ट है, ये आश्वी के लिए जो क्लैपिंग हुई ये भी वेस्ट हो जाएगा। नितिका आपने कुछ भी नहीं बोला है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम स्पेस में सब बच्चे बोलेंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आएंगे। सबके लिए बहुत प्यारी सी क्लैप्स। प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। बहुत अच्छे से आपने कोऑपरेट किया और इसमें पार्टिसिपेट किया। अब मुझे क्या देखना है कि मेरे सारे बच्चे इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है? आपको मोस्टली आप छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तो भी हमारी अच्छे से स्टार्टिंग हो जाएगी। अच्छा लगा सबको? वर्तिका, वेयर आर यू? मैम थैंक यू ऑल, लव यू ऑल एंड गुड आफ्टरनून। अब तो गुड इवनिंग हो गया। गुड इवनिंग, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बाय। जल्दी से कप ले लो और हम बाय करते हैं सारे मिलके। टेक योर कप, बाय मैम। बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।